तो दोस्तों हमारा पड़ाव जो था वो था आज कलत एमगोना, जो कि था एत बेन हुदू से 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और आज हम रात को यहाँ रुकने वाले थे और यहाँ हमें पहुँचने में लगे तकरीबन 2 घंटे। यहाँ के जो सिटी थे वो आप देख सकते हैं, सबका रंग जो था वो मोस्टली ब्राउन रंग के हैं और काफ़ी चहल पहल भरे हुए यहाँ के कस्बे हैं। और बीच बीच में बिल्कुल बंजर ज़मीं आती है, रेगिस्तान दिखेगा और बीच बीच में आपको ऐसे कस्बे देखने को मिलते रहेंगे। पूरे मोरक्को में ऐसा ही हाल है। और ये यहाँ पर आज हम रुकने वाले हैं एक होटल में। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में यहाँ से अपने होटल में। तो दोस्तों ये आज के लिए अपना रूम रहने वाला है। लाइट मैंने अभी ऑन किया और यहाँ से व्यू देखिए, बहुत मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ पे एटलस माउंटेन का। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। और ये आज के लिए हमारा रूम रहेगा। थोड़ा पुराना सा लग रहा है बट फैसिलिटी सारी है और टीवी वगैरह लगा हुआ है। वॉशरूम ठीक है, नॉट टू बैड। तो लाइटनिंग अच्छी है, ये नहाने का इधर तो अच्छा है, नॉट टू बैड। इंक्लूडेड रहता है ये पैकेज में। तो गाइस सबसे बढ़िया जो मुझे लगा और जो मैं चाहता था वो था व्यू। और व्यू है 1 नंबर का यहाँ से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। तो बाकी तो मुझे कुछ चाहिए नहीं है, व्यू है साथ में। और ये यहाँ पे होटल का कमरा है, बालकनी है, बहुत बढ़िया व्यू मिला मेरे को यहाँ पे। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर जाके 7 बजे खाना मिलेगा, तो उसके बाद आगे का प्रोग्राम रहेगा। तो अगले दिन सुबह जल्दी ही अंधेरे में ही हमारी गाड़ी दोबारा से रेडी थी और हम आज जा रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव में। गांव का रहन सहन देखेंगे, तो आइए चलते हैं। You can use Seymour Mohammed as well, guys. Like it's a famous name or an easy name, guys. Okay. So welcome today to my village and welcome to the Berber or Amazigh area, guys. Okay. So today I'm here to show you guys some of our cultures and some of our languages and some of our traditional stuff. Okay. So today we are on the first desert entrance, and by the way, here we are on the nomadic area or the Amazigh area, guys. Okay. So here we're gonna discover many things. So if the yesterday information, it was all of them. It was for like history and what and architecture, guys, and the movies. Today we're gonna discover the languages, culture, architecture, and the traditional crafts like jobs. Okay. So welcome today again to my village. Welcome to the Tudra Valley. Welcome to the Tinghar city, guys. Okay. So and about our tour program, guys. So तो दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां इतिहास और कुदरत एक साथ मिलते हैं। मोरक्को का तंजीर गांव। हमारे गाइड के साथ आज हम यहाँ के हरे भरे खेतों का दौरा करने वाले हैं, जहां वो हमें यहाँ के गांव में क्या क्या उपजाया जाता है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, लोग क्या करते हैं, इसके बारे में वो बताएंगे। Yeah. And we have dates, Morocco dates also? what? Dates. Yeah. We have here. Yeah. I come here because we need to hear you up a little bit. So I don't want to mix with the other group. So Okay. what I'm gonna tell you right now, I'm gonna tell you many affirmations. Okay. And here we are. Okay, like you are near to me. I'm gonna tell you many affirmations. So here we are. We are on the Tudra Oasis. So the name of this area is the Tudra. Okay. Tudra. What she means Tudra? It means life. Okay. You hear me? Yeah. Why we call this area as life? Because of the river. Oh, Of yeah. The water and the river which we have today it's not salty like yesterday. Okay. Yesterday river, it was a salty river. Okay? But this river is a Sweet water. drinkable. We can Okay, drink. drinkable. Okay. And one more thing, it's here this whole oasis is a consist of like 3 parts. Okay? Okay. So when I say 3 parts, I mean by 3 parts like 3 different like type of like trees and a thing. Okay? Okay. So here we are on the last part. Okay. Last part. So this last part is made up or like a consist of like many things like alpha Okay. and
like few palm trees, but this is the male palm trees. Okay. It's male. It's not. हमारे गाइड हमें यहाँ के अनोखे पौधों के बारे में बता रहे थे, ख़ासकर अल्फ़ाल्फ़ा के बारे में, जो यहाँ की खेती का एक ज़रूरी हिस्सा है। खेतों की मेड़ों से होते हुए हमने गांव के सफ़र की शुरुआत की। यहाँ के खजूर के पेड़ और पारंपरिक व्यंजन जैसे खुसखुस जैसे, जिनमें अल्फ़ाल्फ़ा का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। सच बोलूं तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये तंजीर गांव। बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ से आप बर्फ़ से आच्छादित पर्वत देख सकते हैं। और ये दिसंबर का महीना है, तो यहाँ पर जो है वो कोहरा पड़ा हुआ है। और हम खेतों की मेड़ों से आगे बढ़ते हुए ये सामने हम इस गांव को देख पा रहे थे। और जल्दी हम इस गांव के अंदर जाने वाले थे और यहाँ के गांव के रहन सहन के बारे में और जानकारी लेने वाले थे। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है, जो कि खेती है, और यहाँ पर जो कढ़ाई बुनाई का काम भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो हमारा ग्रुप जो था 10-15 लोगों का, हम साथ के साथ चलते जा रहे Some थे। exactly the new generation, like those friends here. So they wanna make a communication, and sometimes they weave like a camels. But we prefer, guys, because as the family, they ask me, don't give them that much money, guys. If someone has a juice or like chocolate or something, just give it. But the new generation, their parents, they say they're gonna buy cigarettes if they have like that much money, guys. Okay, so don't hate me about this. Only give them like some butter or fodder or something like this. But the most of the time they want to make a communication. Okay, this is how I learned language, by the way. Okay, like by communication. So waka Waka. like waka yalla kustos. Oh my God. Very good. Yalla couscous. Yeah. Because I said this word of yalla, Yalla. she's Arabic. Yeah. Okay. Ne. And Yes. she's from like the Moroccans, they use it as well. Okay. So if you want to be like more Amazigh, more native, you should to say Assalamu alaikum with it as well. But you should to say, if you want to say like let's go, yalla, Yeah. you should to say and do. Endo. Yeah. Endo. And do means like let's go. Let's go. And if you want to say like okay, or you are angry or something like this, you should to say waha. It's not waka di shakura. Ah, waka. Waha. Waka. Okay. As So- she says, waka. What? It's waka. No, waka is Different, yeah, it's a waka. different like from the song. But here, if you want to say okay, I'm coming, for example, you should to say waha. Waka. And here, when I ask you like next time, Yeah. when I say like let's go, yalla, or undo, you must say waha. Waka, Yeah, let's waka. go. This is the This entrance. side. Ah. Let's go, guys. Let's go. So here we'll come to the Amazigh entrance. Ah, okay. Right now, you should to see Azul. Azul. Yeah. Okay, guys. Here is the Amazigh entrance. Okay. Here is the our symbol, guys. Okay. So you should just say right now for someone all of those like Azul. Okay. Let's go, guys. Yeah. Namaste. Namaskara. Namaskaram. Do you know what she means, la mascara, in the Spanish language? No. The most expensive one. Really? Yeah. Namaskaram. Yeah. Okay. Mascara. Namaskara. Ladies, what she means, la mascara in Spanish? Mascara. Yeah. Mascara. Mascara for eyelashes. Eyelashes, or like when you say mascara. The most expensive one, right? Mascara. Mascara. Estas. A ver, más Okay. like a Spanish, más. Mas. Y cara or caro. Pero jalaba es mascara. Pero ¿qué significa mascara en la idioma de los indianos? Es como si dicen hola. It's how they say like hi or something like this. Like buongiorno fratello, come stai? Tutto bene? Quando il gatto non c'è con più bala.
Quando si chiude un porto si apre un portone molto grande. Una, come si dice l'altra? Una gallina vecchia fa buono brodo. Yeah. Vamos. Azul. Azul, yeah. Azul. Azul. أعتقد أنتدني فاطمة. Here is the grandma. Hello. يلا. مرحبا. Happy Christmas. Guys, can you come here? I'm gonna show you something. तो गांव के अंदर हमारा गाइड हमें एक पारंपरिक दुकान पर ले गया जो एक छोटे से घर जैसी थी। वहाँ उसकी दादी हमें यहाँ की ख़ास बुनाई कला के बारे में बताने वाली थी कि कैसे उनको प्रोसेस करके खूबसूरत कालीन और चादरें बनाई जाती हैं। दुकान में कदम रखते ही चारों तरफ भांति भांति की कालीन और चादरें सजी थी। अब हम यहाँ पर इन ऊन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसको कैसे रिफ़ाइन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इनकी जो दादी थी वो हमें बता रहे थे कि किस तरह के औजार जो थे वो यूज़ करते हैं इस ऊन को प्रोसेस करने के लिए। तो ये देखिए, तो हम उनका फेस नहीं ले सकते थे तो मैं अवॉइड कर रहा था कि उनका फेस ना आए वीडियो में। और ये सारा ग्रुप हमारा बैठ गया है और इसके बाद आने वाली है हमारे लिए कुछ गर्मा गर्म चाय। तो हमने इसके बारे में जाना कि कैसे, ये देखिए कि कैसे उनको प्रोसेस किया जाता है। उनको बीच में रख के इन दो जो ये इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूँ इसको, इसके बीच में ये बिल्कुल बहुत ही पैने थे और इनको प्रोसेस किया जाता है। उनको बार बार इस पे रगड़ा जाता है और उसके बाद आगे यहाँ की बहुत ही फेमस मोरक्को चाय। तो चाय पियेंगे हम। कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, वरना अब हम जाएंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी ये चाय यहाँ की बहुत फेमस चाय है जिसमें कि मिंट डाला जाता है। तो अभी हम लेंगे चाय का स्वाद। तो कस्बे से थोड़ा सा बाहर निकलते ही हमने इतिहास के एक और पहलू को देखा। मिट्टी और कीचड़ से बनी ये खंडहर हो चुकी दीवारें जैसे सदियों की कहानी कह रही हों। ये दीवारें हमें यहाँ के पारंपरिक निर्माण शैली की याद दिलाती हैं और इस जगह के बदलते वक़्त का जो आज भी खंडहर बन चुकी खामोश गवाह हैं। तो दोस्तों, तंजीर गांव से निकलकर अब हमने प्रसिद्ध दोदरा गॉर्ज की तरफ कदम बढ़ाए जो कि हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला था। ये यहाँ से करीबन 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और हमारा गाइड हमारे साथ वहाँ तक जाने वाला था। और इस गांव के बारे में, यहाँ की प्रचलित कहानियों के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ की जियोग्राफी के बारे में वो हमें सब इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो ये सफ़र यहाँ से केवल 30 मिनट का सफ़र है। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। और यहाँ से जैसे हमारी गाड़ी निकली तो सामने बर्फ़ की फिर वो पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही थी। गांव और ये कस्बा बहुत ही साफ़ सुथरा कस्बा था। और यहाँ का जो सफ़र था वो सच बताऊँ तो मैं शायद ही अपने शब्दों से इस सफ़र को मैं बयां कर सकूं। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि आप ज़रूर, अगर आपका हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, कल्चरल में, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करने का अगर आप में जज्बा है तो आप ज़रूर जाइए। और जैसे जैसे हम जा रहे थे इस कॉर्ज की तरफ, ये देखिए कितने ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारे देखने को मिल रहे थे। अलग ही दुनिया है ये दुनिया। आपको संसार में आप कहीं भी चले जाइए, ऐसी दुनिया आपको देखने में नहीं मिलेगी जहाँ बीच में हरियाली के इतने बड़े बड़े पैच थे कि ऐसा लग रहा है कि ये हम रेगिस्तान में हैं ही नहीं। और यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे ऑलिव बहुत होता है, ऑलिव के बहुत पेड़ हैं यहाँ पे, खजूर और ऑलिव के। तो जैसे जैसे हम इस छोटे से कस्बे को छोड़ के उस कॉर्ज की तरफ, उन पहाड़ियों की तरफ जाते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और वो हमारे जो इस रास्ते को बहुत ही यादगार बनाते रहे। हमने कई खूबसूरत गांव को पीछे छोड़ा और जैसे जैसे पहाड़ियों पर चढ़ते गए नीचे के नज़ारे
और भी स्टनिंग होते गए। रास्ते में दिखी कुछ नदी के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और साथ में बसे हुए बहुत ही खूबसूरत गांव। सपने से कम नहीं लग रहा था ये सफ़र मुझे। और बीच बीच में हमारा गाइड यहाँ की पूरे किस्से कहानियों को सुनाते सुनाते इस रास्ते को, इस जो सफ़र को और भी रोमांचित बना रहा था। That type which is like so fresh, like this side, and this type you need more water. Guys. Here we have a river, switch way, okay? But what are you gonna think exactly? The Meshhur is the next area, the next oasis, okay? That's this oasis, and here is over there is our old Casbahs, and you saw that. गॉर्ज तक पहुंचने से ठीक पहले एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने मानो मेरी सांसें रोक दी हों। चारों तरफ भूरी पहाड़ियों के बीचों बीच खजूर के पेड़ों से सजी एक खूबसूरत वैली, ये मेरे मोरक्को सफ़र का अब तक का सबसे सुंदर दृश्य था। उस खूबसूरत वैली को पार करने के बाद हम तोदरा गॉर्ज की तरफ और आगे बढ़े। सामने दिखती ये विशाल भूरी चट्टानी पहाड़ियाँ किसी दूसरी दुनिया का रास्ता लग रही थी। कई बार नज़ारे इतने स्टनिंग होते हैं कि उनके बारे में बिना जाने ही एक अजीब रोमांच सा महसूस होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए, यह एहसास और गहरा हो गया कि ये सफ़र हमें कहाँ लेके जाने वाला है। सामने भूरी पहाड़ियाँ, उनके बीचों बीच एक सुंदर सा रास्ता और रास्ते के बाईं तरफ हरे भरे पेड़, जो यहाँ बहने वाली एक नदी की निशानी है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इन पहाड़ों को पार करने वाले हैं, क्योंकि आगे दोनों तरफ से पहाड़ियाँ तंग होती जा रही थी। सच में ही ये सफ़र वाकई बहुत रोमांचित से भरा हुआ था। और सच में जैसे हम बिल्कुल इस पहाड़ी के बिल्कुल करीब आए तो सच में मुझे एक समय ये प्रतीत हुआ कि शायद यहाँ एक बहुत बड़ी टनल है जिसको पार करके हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं। जैसे ही हमने तोदरा गॉर्ज में प्रवेश किया, मेरा तो सच पूछिए तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये वाकई मेरी कल्पना से परे था। दोनों तरफ फैली ये विशाल भूरी पहाड़ियाँ और ऊपर तक जाती नज़रें इस गॉर्ज की भव्यता को बयां करती थीं। जो शायद आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वह यहाँ की असली खूबसूरती को पूरी तरह से महसूस नहीं करवा सकता है। और सच में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस खूबसूरती को, आप इस पल को अलग ही तरीके से महसूस कर पाएंगे। तो ये गाड़ी हमारी हमें और आगे तक इस गॉर्ज के दूसरे कोने तक लेके जा रही थी, जहाँ पर फिर हमारा जो गाइड जो हमारे साथ आए थे वो हमें यहाँ के बारे में, इस गॉर्ज के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और जानकारी देने वाले हैं। गाड़ी हमें गॉर्ज के और आगे तक लेके गई जहाँ तक जाना संभव था। और इस गॉर्ज में दाईं तरफ एक छोटी सी नदी बह रही थी और दाईं तरफ कुछ यहाँ पर लोकल जो सामान था वो, आप जैसे यहाँ पे जो पटके होते हैं वो, और यहाँ के कुछ अफ्रीका के, मोरक्को के कुछ आभूषण रहते हैं। कुछ यहाँ का जो लोकल जो बुनाई का, कढ़ाई का जो सामान है, उनके जो स्टॉल लगे हुए थे। और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे पुलिस थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। तो यहाँ उतरने के बाद
मैंने इस गॉर्ज को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की ताकि आप इसकी विशालता का एहसास कर सकें। ये देखिए, गाइड ने हमें यहाँ के बारे में और जानकारी दी और गाड़ी से उतरने के बाद हम पैदल आगे चलते गए। तो ये देखिए, इसकी आप विशालता का अनुमान शायद ही आप इस वीडियो के ज़रिए लगा सकें। तो गाइड जो था उसने फिर यहाँ पर खड़े होके इस नदी के बारे में बताया, ये जो सामने रेस्टोरेंट था इसके बारे में, होटल था इसके बारे में बताया कि इस रेस्टोरेंट और होटल के बीच में जब इस नदी में पानी आ जाता है तो ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो कोई भी उस होटल में रहता है या कोई भी इंसान उस साइड रहता है उसको उस समय तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक इस नदी का पानी बहाव जो था वो कम नहीं हो जाता है। फिर हमने इस नदी में कदम रखा जहाँ हर कोई इस अनफॉरगेटेबल मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। हर तरफ तस्वीरों और वीडियो बनाने का जुनून दिख रहा था ताकि इन खूबसूरत पलों को यादों के साथ संजोकर रखा जा सके। गॉर्ज से निकलने के बाद हम फिर अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े क्योंकि आज हमें पहुंचना था सहारा डेज़र्ट के मर्ज़ुगा, जहां हमारी कैमल राइड होने वाली थी। यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र था को करीब 2 से 3 घंटे का था। रास्ते में फिर वही पुराने कस्बे, वही जाने पहचाने नज़ारे, बीच में हरियाली, बीच में चट्टानें, और हम इन सब के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो मैं था वैन की फ्रंट सीट पर जहाँ से अच्छे वीडियो बन रहे थे और यहाँ के कस्बों से गुजरते हुए मैं उन सब को अपने कैमरे में कैद करता जा रहा था। अब सब लोग थक चुके थे और वैन में थोड़ी खामोशी थी। तो इस सफ़र को थोड़ा और रोमांचित बनाने के लिए मैंने अपने मोबाइल को वैन के ऑडियो से कनेक्ट किया और अलग अलग तरह का संगीत बजाना शुरू किया ताकि इटली, यूएस और इंडिया के लोग जो इस सफ़र में मेरे साथ थे वो थोड़ा एक्साइटेड महसूस करें और फिर से इस सफ़र में शामिल हो सकें। मेन रास्ता बंद होने की वजह से हमारी वैन को कस्बे के छोटे छोटे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, जिसने मुझे इस जगह को और करीब से जानने का एक और मौका दिया। तंग गलियाँ, भूरे रंग के मकान और वहाँ के बच्चे, ये सब मिलकर एक अलग ही समा बांध रहे थे। हमारी वैन धीरे धीरे कस्बे के बीच से निकलकर आगे बढ़ रही थी और रास्ते में हमें एक मस्जिद भी दिखी जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हर कस्बे में एक जैसा ही होता है और आपको ये मस्जिद हर कस्बे में, हर गांव में एक मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम फिर से मुख्य रास्ते पर आ गए और अपने अलग अलग तरह के संगीत का आनंद उठाते हुए अपने अगले पड़ाव मर्ज़ुगा की ओर बढ़ चले। इन कस्बों से गुजरते हुए मन में एक अजीब रोमांच और उत्साह था कि जिस सहारा डेज़र्ट को आज तक हमने किताबों में पढ़ा, आज उसे करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ हमारे अगले पड़ाव सहारा मरुस्थल की तरफ इस सफ़र को जारी रखने के लिए हमारे चैनल नोमैडिक बुद्धा को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में सहारा मरुस्थल में।